اسٹیج پر تشریف فرما ہے، کرسی خطابت پر جلوہ افروز ہو چکے ہیں، ہم اور آپ ان کے خطاب سے محظوظ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی شمس الہدایۃ والیقین وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِ الْمُؤْمِنِينَ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوا العلم ولو كان بالسين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامس فتهلك، او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی آخر کلامنا۔ اے علم تو نے کیا ملکوں کو نہال، غائب ہوا تو جہاں سے وہاں آیا زوال، ان پر ہوئے غیب کے خزانے مفتوح، جن قوموں نے ٹھہرایا تجھے رأس المال۔ رونق اسٹیج، علماء کرام، بزرگان دین، مشائخ عظام، سامعین ذی وقار، اور جہاں تک گوشے گوشے آواز پہنچ رہی ہے پردہ نشی میری ماں اور بہنوں، یقیناً میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں نماز کے موضوع پر بات کروں، چونکہ میں ایک امام ہوں۔ میں نے اس کا خاکہ بھی بنایا تھا، میں نے کچھ الفاظ بھی چنے تھے، کچھ حدیث بھی پڑھی تھی ذہن کے کسی خانے میں، لیکن بس بیان سے 2 منٹ پہلے میں نے اپنی تقریر کا موضوع بدل دیا اور وہ علم آ گئے۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ یہ جو جلسہ منعقد ہوا ہے، یہ کانفرنس جو منعقد کیا گیا ہے، یہاں مقصد ہی ہے اس کانفرنس کا علم کی بیداری۔ حاضرین کرام، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالی نے ابھی پیدا نہیں فرمایا تھا، جو ہم سب کے ابا ہیں اور ہم سب اسی سے پیدا ہوئے ہیں، تو وہاں پر بھی مکالمہ ہوا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ، اس زمین پر جو مخلوق آتی ہے وہ فساد پھیلاتی ہے، جھگڑے کرتی ہے، خون ریزی کرتی ہے، آپ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے جو مخلوق زمین پر فساد پھیلائے گی، جھگڑے کرے گی اور ایک دوسرے سے نفرت کرے گی، آپ ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں میں زیادہ جانتا ہوں، تم زیادہ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خلافت کے لیے فرشتوں کو جو چپ کرایا وہ کس نام سے؟ کہ میں زیادہ جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو کچھ نام سکھا دیے، کچیا پسنی اور چند چیزیں وہ سکھا دیے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، تو فرشتوں سے کہا کہ ذرا ان ناموں کو بتاؤ، تو
फरिश्तों ने क्या कहा, क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। ऐ बारे अल्लाह, आपकी जात पाक है, आपने हमें जितना दिया है हम उतना जानते हैं, उससे ज्यादा नहीं जानते। और जब हजरत आदम आला नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम से कहा, ऐ आदम बताओ इनके अस्मा क्या है, हजरत आदम आला नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम बता दी। अल्लाह तबारक व तआला ने सारी दुनिया में हुकूमत अता की, एक ऐसी हुकूमत, ऐसी बादशाहत कि ये बिशनपुर पर सराय हाटगाछी वगैरह सबको मिला करके इससे भी बड़ा तख्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम व तस्लीम का तख्त था, जिस तख्त शाही पर हजारों उनके वज़ारा और उनके तमाम के तमाम हवारी बैठा करते थे और वो तख्त आसमानों पर उड़ा करता था। ऐसी बादशाहत की हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम व तस्लीम की। अल्लाह तबारक व तआला ने जब नबी की तारीफ करते हैं, नबी के मकाम को बताते हैं, नबी की फजीलत को बताते हैं, तो कुरान में कहते हैं वलक़द आतैना दाऊद व सुलैमान इल्मा व क़ाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़लना अला कसीरिन मिन इबादिल मुमिनीन। ऐ ईमान वालो, ऐ उम्मत मुहम्मदिया, ऐ कुरान के मानने वालों, ऐ नबी के मत वालों, सुनो, हमने सुलेमान को भी फजीलत दी, हमने दाऊद को भी जो फजीलत दी, वो फजीलत की जो सबसे कीमती दौलत थी वो क्या है, वो इल्म की दौलत थी। हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत खिज़र अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पीछे लगाया। कहा है मूसा, आपके पास वो इल्म लदुन्नी जो हमने खिज़र को दिया है आपके पास नहीं है, जाइए हजरत खिज़र अलैहिस्सलातु व तस्लीम को ढूंढिए। ऐ बारे अल्लाह, आपसे तो हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं, हजरत मूसा खिज़र कहाँ मिलेंगे? कहा, ऐ मूसा ये इल्म है, ये इल्म है, घर में इसी तरह बैठ कर रहने से नहीं मिला करता, माँ बाप के सिर्फ बोलने से नहीं मिला करता, माँ बाप को उनके खून पसीने के साथ साथ अक्ल और दिमाग की भी कुर्बानी देनी पड़ती है, तब जाकर के वो इल्म का चराग, वो इल्म की रोशनी तब जाकर घरों में पैदा होते हैं। आमतौर पर होता क्या है, बच्चे को मदरसे में भेजा, मगरिब के बाद बच्चे को पढ़ाने के लिए नहीं बिठाएंगे, कहेंगे बच्चा नहीं पढ़ता। जब 1 साल 2 साल हो गया तो अब घर वाले मौलवी को गाली देंगे, बच्चे को गाली देंगे, कोसना शुरू करेंगे, लान तान कहेंगे कि ये बच्चा नहीं पढ़ता। माफ कीजिए, कड़वे अल्फाज हैं, लेकिन मैं जरूर कहूंगा बच्चे की कमी कम है, उससे ज्यादा माँ बाप की कमी है। कभी आपको तौफीक नहीं होती कि जो बच्चा मेरे घर में पढ़ रहा है, काल अल्लाह और काल रसूल पढ़ रहा है, जो आखिरत का जरिया, जो जन्नत का टिकट है, मगरिब के बाद कम से कम बैठकर उस बच्चे को 2 शब्द पढ़ाएं कि बेटा तुमने क्या पढ़ा, तुमने क्या पढ़ा। यही पूर्णिया की सरजमीन है। मैं उस माँ को दाद देता हूँ, मुबारकबादी देता हूँ, जिसने अपने बच्चे को एक एक आयत याद करा करके पूरे कुरान हिफ्ज़ करा दिया। मैं उस माँ का नाम भी जानता हूँ, मैं उस बच्चे का नाम भी जानता हूँ। 7 साल की उम्र में वो बच्चा हाफिज़े कुरान हुआ और वो बच्चा स्कूल में 5वीं क्लास में पढ़ता था, 5वीं क्लास में पढ़ता था। इल्म ऐसे नहीं आ जाता, इल्म पैसे से नहीं मिलता, इल्म कुर्बानी मांगता है, पैसे की, वक्त की, अक्ल और दिमाग की, इन तमाम चीजों की कुर्बानियां मांगता है। हाज़रीन, हम और आप अगर अपनी औलादों को, अपने समाज को, अपने माशरे को ऐसी दौलत देंगे, तब जाकर के हमारा मुआशरा बनेगा और चमकेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम, ए बारे अल्लाह, आपसे तो डायरेक्ट हम बात कर लेते हैं, खिज़र भी हमारे घर के पीछे है, मिल जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं है मूसा, आपको नहीं मिलेगा। एक झोली में मैंने जो मछली दी है उस मछली को लेकर जाइए, ये मछली आपके झोली से निकलकर जहां रास्ता बना ले, आपको उसी रास्ते पर जाना है। चले गए, जाते रहे। उनके खादिम ने कहा, ए मूसा हम थक गए हैं, जरा आराम कर ले। हजरत मूसा ने कहा अलैहिस्सलातु व तस्लीम, नहीं, ये इल्म का मामला है, थकने से काम नहीं चलेगा, चलो और चलते हैं, ताकि जल्दी हजरत खिज़र के पास पहुंच जाए।
जैसे ही और थक गए, कहा भूख में महसूस कर रहा हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं झोली में कुछ है तो निकालो, खाएंगे। कहा माफ कीजिए ऐ नबी, हम भूल गए, कुछ वक्त कबल ही वो मछली निकलकर समंदर में रास्ता बना ली, नदी में वो रास्ता बना ली। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने कहा ओहो हमसे भूल हुई, मछली जहां रास्ता बनाई है वहीं से इल्म का सोता निकलता है, वहीं हजरत खिज़र अलैहिस्सलातु व तस्लीम मिलेंगे, वहीं हजरत खिज़र अलैहिस्सलातु व तस्लीम मिलेंगे। और फिर उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस लौटते हैं, उसी रास्ते पर चलते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब हजरत खिज़र अलैहिस्सलातु व तस्लीम से मिलते हैं तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं ऐ मूसा आप नबी हैं, मैं खिज़र हूं, इन्नका लन तस्ततिअ मइय सबरा, आप इस इल्म को हासिल करने में आप मेरा साथ नहीं दे पाएंगे, सब्र नहीं कर पाएंगे। हजरत मूसा ने कहा नहीं नहीं मैं सब्र करूंगा, मैं आपके साथ इल्म हासिल करने के लिए जो इल्म लदुन्नी आपके पास कीमती इल्म है उसको हासिल करने के लिए मैं आपके साथ रहने की जरूर कोशिश करूंगा। मेरे मुसलमानों, मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, खुसूसन वो हजरात जो अपने आप को लीडर कहते हैं, मिंबर हैं या मुखिया हैं, इन तमाम हजरात को मैं मुखातब करता हूं, आप कुर्बान जाइए, अपने सरों पर बिशनपुर मदरसे के असातिज़ाए किराम को बिठाइए और उनकी इज्जत व इकराम कीजिए, इसलिए कि ये इल्म सिखाते हैं, आपके नौनहालों को ये फुलाते हैं और यही वो फूल है जो आगे चलकर मुकम्मल तौर पर समाज में खुशबू फैलाएगी। लोगों, एक मर्द एक शख्स को इल्म सिखाता है, लेकिन जिस घर में एक माँ इल्म वाली हो जाती है, खुदा की कसम उस घर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पैदा होता है, ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह पैदा होता है, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह पैदा होता है। जिस घर में माँ नेक हो जाए कासिम नानोतवी पैदा होता है, जिस घर में माँ नेक हो जाए मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह बानिए तबलीग जमात पैदा होता है। कब पैदा होता है? जब हमारी माँ नेक होती है। मुसलमानों, बिशनपुर और परसराई हदगाची के मुसलमानों, ये वो मदरसा है जो असातिज़ा अपने खून पसीने और वक्त दे करके आपके बच्चों को चमकाते हैं। बहुत सारे मदरसे ऐसे हैं जो सरकारी हैं, आप जाएंगे इन मदरसों का हाल देखेंगे, अपने खून के आंसू रोएंगे, यकीनन आप देख नहीं पाएंगे। जब आप उनसे पूछेंगे तरह तरह के बहाने बनाकर निकल जाते हैं, वो सरकार से निकल जाते हैं, हमसे निकल जाते हैं। हमें चाहिए, हम उम्मीद करते हैं यहाँ के असातिज़ा से, आपने अपने बच्चों को जितना चमकाया है, हमारा दिल कहता है इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आइंदा आने वाला साल आप और इन बच्चों को रोशन बनाएंगे, इनके सीनों को और मुनव्वर करेंगे, इनके मुस्तकबल को और चमकाएंगे, दमकाएंगे, और हम आपकी इसी तरह इज्जत व कद्र और आपकी तारीफ करते रहेंगे। हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम जैसे ही पहुंचे हैं तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं क्या कि आप सब्र नहीं कर पाएंगे। देखिए हजरत खड़े हो गए कि जनाब वक्त आपका हो गया है, हम भी आपका सब्र नहीं कर सकेंगे, यही तो बात सुन लीजिए। कहा नहीं करेंगे। हजरत मूसा ने कहा करेंगे, चलिए साथ में। जैसे ही गए कश्ती पार किए और कश्ती में सुराख कर दिए। हजरत मूसा जलाली, क्या किया आपने? नबी के सामने जुल्म नबी बर्दाश्त नहीं करेगा। कहा कि मैंने नहीं कहा था कि सब्र नहीं कर सकेंगे। फिर उसके बाद और आगे गए, मोहल्ले वालों से, बस्ती वालों से खाना मांगा, नहीं दिया। कहा ये दीवार है, इस दीवार को सही करो। कहा हजरत मूसा ने कहा खिज़र आप ये क्या कर रहे हैं? कहा कि मैंने कहा था नहीं सब्र नहीं कर सकोगे। और आगे चले, बच्चे खेल रहे थे, उसको कत्ल कर दिया और कहा कि मैंने कहा था कि सब्र नहीं कर सकेंगे। हजरत मूसा फिर बोल पड़े थे, कहा कि हादा फिराकु बैनी व बैनी, ए मूसा ए खिज़र, ये दोनों अब यहाँ से एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं, अब
اب کہا وہ علم لدنی جو اللہ نے آپ کو نبی بنایا لیکن خضر کو عطا کیا ہے، وہ یہ میں نے جس کشتی میں سوراخ کیا تھا، وہ کشتی اس لیے سوراخ کیا تھا ورنہ وقت کا جو ظالم ہے اس کشتی کو حوالے کر لیتا، میں نے اس دیوار کو اس لیے درست کیا تھا، اس دیوار کے نیچے معصوم بچوں کے خزانے دبے ہوئے تھے، اگر دیوار ٹوٹ کر گر جاتی تو وہ خزانہ وہاں سے نکلتا، گاؤں والے لوٹ لیتے۔ میں نے جس بچے کو قتل کیا تھا اگر قتل نہیں کرتا یہی بچہ بڑا ہو کر کے اپنے ماں باپ کو کافر بنا دیتا۔ مسلمانوں یہی وہ علم ہے جسے اپنے گلے میں زیور بنا کر پہننے کی ضرورت ہے، اپنے پاؤں میں ٹھکرانے کی ضرورت نہیں۔ آپ محبت کرتے ہیں عزت اور دولت سے، خدا کی قسم اگر علم آئے گا تو چھک مار کر عزت بھی آئے گی، دولت بھی آئے گی۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔